الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ تمام احباب کو میری طرف سے اور ہماری جماعت کی طرف سے مبارکباد ہو۔ تقبل اللہ منا و منکم۔ اللہ رب العزت ہماری نمازیں، ہمارے روزے، نماز تراویح، صدقہ خیرات، زکوٰۃ، صدقۃ الفطر، اعتکاف اور ہر قسم کی عبادات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ محترم بھائیوں، اصل عید جو ہے یہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کا موقع ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں تاکہ تم گنتی پوری کرو جو روزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ وہ ایک ماہ کی گنتی الحمدللہ ہم نے پوری کر لی۔ جس طرح اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، تمہاری رہنمائی کی ہے، اس طرح اللہ کی بڑائی بیان کرو تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اصل عید اس کی ہے جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ہیں۔ عید اس کی ہے جو نماز پنجگانہ کا اہتمام کرتا رہا، نماز تراویح کا اہتمام کرتا رہا، قرآن کی تلاوت کرتا رہا، صدقہ خیرات کرتا رہا، اللہ رب العزت سے دعائیں کرتا رہا اور رب سے معافی مانگ کر رو کر اپنے رب کو منانے میں کامیاب ہو گیا۔ اصل عید اس کی ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے اور باقی امور کا اہتمام نہیں کیا، پھر یہ دکھلاوا ہے، پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل عید اللہ کی قسم اس بندے کی ہے جو کامیاب ہو گیا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ تحقیق وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو برائیوں سے، گناہوں سے، نافرمانیوں سے، معصیتوں سے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، اللہ کا ذکر کیا اور جس نے نماز ادا کی۔ یہ ہے اصل عید۔ عید کا فلسفہ ہی یہ ہے۔ اور دوسری بات کہ عید کے موقع پر آپس میں بھائی چارہ، پیار، محبت، اخوت، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع پڑھ کر دیکھیں جو انسانی حقوق کا ایک عظیم اور جامع چارٹر ہے۔ اس کے اندر آپ نے بار بار حقوق العباد کی تلقین کی۔ فرمایا لوگوں، جس طرح ذوالحج کا مہینہ جو ہے یہ حرمت والا ہے، شہر مکہ حرمت والا ہے، میدان عرفات، عرفہ کا دن جو ہے اور یہ عظیم جگہ حرمت والی ہے، اسی طرح تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہیں۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے کا خون بہائے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں اس کا مال نجائز طریقے کے ساتھ
सूद, रिश्वत, चोरी, डकैती और दूसरे को धोखा देकर, फ्रॉड करके, मिलावट करके किसी दूसरे मुसलमान का माल ले ले और किसी की इंसल्ट करे, बेइज्जती करे, किसी को लोगों के सामने रुसवा करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ काबातुल्लाह, अल्लाह के नजदीक तेरी बड़ी इज्जत, तेरा वकार बड़ा है। यकीनन काबातुल्लाह की ये अजमत है। एक नमाज जो वहां पढ़ता है, अल्लाह उसको 1,00,000 नमाज का सवाब अता कर देते। लेकिन काबातुल्लाह, एक मोमिन की इज्जत अल्लाह के यहां तुझसे भी ज्यादा है। और मोहतरम भाइयों, आज हम मामूली बातों पर लड़ाई झगड़े, इंतशार, इफ्तराक, एक दूसरे के जानी दुश्मन, एक दूसरे के खून के प्यासे, और हमारा पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी की लपेट में है। वो कहां से दहशतगर्द आते हैं? ठीक है, बाहर से फंडिंग होती है, उनको पैसा मिलता है, लेकिन वो पाकिस्तानी हैं। उनमें से बहुत सारे मुसलमान हैं जो इस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। आपस में भाईचारा, कूनू इबादल्लाह इख्वाना, अल्लाह के बंदो भाई भाई बन जाओ, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, सारे मोमिन आपस में भाई भाई हैं। ये जितने हम यहाँ बैठे हैं, हमारे सबके बाप आदम अलैहिस्सलाम, माँ हव्वा, आपस में इस्लाम की बिना पर, कलमा तैयबा की बुनियाद पर हम आपस में भाई भाई हैं। और वो भाई क्या है? आपस में नाराजगी हुई, महीना गुजर गया, साल गुजर गया, 5 साल गुजर गए, मस्जिद में आते हैं, मुंह फेर के चले जाते हैं, एक दूसरे से मुलाकात नहीं होती, ईद में आते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं। तुम्हारी इबादत का क्या बनेगा? क्या फायदा ऐसी इबादत का? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 दिन से ज्यादा किसी के लिए जायज नहीं कि वो अपने भाई से मिले, उससे मुंह फेर ले, उससे एराज करे, उससे नफरत करे। आपस में एक दूसरे से इंतशार हो जाता है, लड़ाई झगड़ा, इख्तलाफ हो जाता है। 3 दिन से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। आज के खुतबा ईद का ये सबक याद करें। आपकी जिसके साथ नाराजगी हुई है, सबसे पहले आज इसी मौके पर उठें, दूसरे के पास चलकर जाएं, सलाम करें, मुसाफा करें, अपने गले के साल लगाकर नाराजगियां खत्म कर दें। जिंदगी का कोई पता नहीं, अगर आपका दिल साफ है। रसूलुल्लाह ने एक सहाबी को जन्नत की खुशखबरी 3 दिन इसी बना पर दी थी कि उसके दिल में किसी मुसलमान के बारे में कीना और बुग़्ज़ नहीं है। अपने दिलों को साफ करें, प्यार और मोहब्बत। आपका किसी से लड़ाई झगड़ा है, ईद के फौरी बाद उसको फोन करें, उसके पास पहुंचे, और अल्लाह की रजा के लिए अगर तुम किसी को माफ कर दोगे, अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। अला तुहिब्बूना अय्यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या तुम चाहते नहीं तुम्हारा रब तुम्हें माफ कर दे? वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। फिरका वरीयत, ग्रोह बंदियां, इंतशार, इफ्तराक, दीन वो है जो अल्लाह ने नाज़िल किया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बाप दादा की बात का नाम दीन नहीं, नानी दादी की बात का नाम दीन नहीं, किसी मौलवी, मुफ्ती, इमाम, मुज्तहिद, फकीह की बात का नाम दीन नहीं। अल्लाह की कसम, दीन वो है जो अल्लाह ने अपने महबूब पर नाज़िल किया है। उस दीन पर अमल करेंगे, नजात का एक ही रास्ता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तरक्तु फीकुम अमरैन लम तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा, किताबुल्लाह व सुन्नतु रसूलिह। लोगों, मैं तुम्हारे पास 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं, जब तक इनको मजबूती से थाम कर रखोगे तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे। एक अल्लाह की किताब कुरान है, दूसरी उसके रसूल की सुन्नत है। अल्लाह की तौहीद के बाद, अकीदे की दुरुस्ती के बाद इंसान का ये अकीदा हो, अल्लाह की जात, सिफात, इबादत में कोई शरीक नहीं। हाजत रवा, मुश्किल कुशा, दाता, गंज बख्श, गौसे आजम, दस्तगीर, लाजपाल, करनी वाला, औलाद देने वाला, रिज्क देने वाला, शिफा देने वाला, परेशानियों से निजात देने वाला वो एक अल्लाह है। अल्लाह के अलावा कोई दूसरा नहीं है। उसके बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा तैयबा का, कलमा शहादत का दूसरा हिस्सा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जब आपका नाम आए, ये बुखल है कि दुरूद ना पढ़ा जाए। अपने दिलों के अंदर रसूलुल्लाह की मोहब्बत जो रखते हैं, उसका सबूत देते हुए जब भी आपका नाम आए, ये दुरूद पढ़ना लाजिम है, वाजिब है, जरूरी है। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी मोहब्बत ईमान का लाजमी जुज़ है, जिसके दिल में सारी कायनात से बढ़कर अल्लाह के बाद रसूलुल्लाह की मोहब्बत नहीं, वो ईमान वाला नहीं हो सकता। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। आप फरमाते हैं लोगों, तुम में से उस वक्त तक कोई ईमान वाला नहीं हो सकता, उसका ईमान मुकम्मल ही नहीं हो सकता जब तक वो अपनी औलाद, अपने वालिदैन और तमाम लोगों से बढ़कर मेरे साथ मोहब्बत नहीं करता। वो कायनात का बदतरीन इंसान है जो रसूलुल्लाह को अपने भाई जैसा मुकाम दे कि वो मेरे भाई जैसा है, और उस पर फटकार है, जल जाए उसकी जबान, तबाह बर्बाद हो जाए। जो रसूलुल्लाह के बारे में ये अकीदा रखे वो भाई है। और मैं कहता हूं आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले इंसान, उनमें 1.25 लाख अंबिया भी हैं, उनमें 1.5-2 लाख सहाबा भी हैं, ताबेईन, तबा ताबेईन, औलिया इकराम, मुहद्दिसीन, आइम्मा इकराम, फुक़हा, सारे के सारे एक पल्ले में आ जाएं, सारे मिलकर भी रसूलुल्लाह की अजमत और मुकाम का मुकाबला नहीं कर सकते। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम दुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह फरमाते हैं मेरे नबी इनसे कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो, उसका तरीका ये है, अमली सबूत ये है, फत्तबिऊनी, और लोगों मेरी पैरवी करो, मेरी इत्तिबा करो। रसूलुल्लाह की इताअत फर्ज है, जरूरी है। आपकी सुन्नत को पर अमल करना, अकीदा हो, इबादत हो, नमाज उस तरह पढ़नी जिस तरह रसूलुल्लाह ने नमाज पढ़ी। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, हज उस तरह करना जिस तरह रसूलुल्लाह ने हज किया, सदका खैरात उस तरह देना जिस तरह रसूलुल्लाह ने किया, सदकातुल फितर उस तरह अदा करना जिस तरह रसूलुल्लाह ने किया है। अपनी जिंदगी की तमाम इबादत और ईद उस तरह पढ़नी है जिस तरह रसूलुल्लाह ने पढ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सुन्नत के मुताबिक फजर की नमाज अदा की, ताक खजूरें खाई, ईदगाह में पहुंचे और आकर सुन्नत के मुताबिक पहले ईद की नमाज पढ़ी। रसूलुल्लाह ने ईद के बाद खुतबा दिया। आज हम खुतबा सुन रहे हैं, अभी दुआ करेंगे। आपने फरमाया मुसलमानों की दुआ में शरीक हो जाओ। ये ईद का तरीका है। मस्जिद नबी जो है वो आम मस्जिदों जैसी नहीं है। एक मस्जिद वो है जिसकी बुनियाद आपने रखी, मैंने रखी। एक वो मस्जिद है कि सारी कायनात से अफजल, सारी कायनात से आला, नबियों के इमाम, वलियों के सरदार, पूरी कायनात के सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मस्जिद की बुनियाद रखी, आम जगह नमाज पढ़े, एक का सवाब मिलता है, ज्यादा से ज्यादा 27 का मिलता है। मस्जिद नबी की एक नमाज 1000 नमाज से अफजल है। एक नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मस्जिद नबी में ईद की नमाज नहीं पढ़ते थे, बल्कि खुले मैदान में जाकर ईद की नमाज पढ़ते थे। आज खुश हो जाए, हम रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल करते हुए यहाँ आए हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें तौफीक दी, हम तेरे नबी के तरीके पर अमल करते हुए इबादत के बाद अखलाकियात, मामलात, अपना रहन सहन, चाल डाल, शक्लो सूरत, लिबास, हर इंसान का उठना बैठना, चलना फिरना, सोना जागना, सारे के सारे आमाल अगर चाहते हैं कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, फत्तबिऊनी, रसूलुल्लाह फरमाते हैं फिर मेरी इत्तिबा कर लो, मेरी पैरवी कर लो। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ओ लोगों, यहूदियों को अपना आइडियल ना बनाओ, ईसाइयों को अपने लिए नमूना ना बनाओ, गैर मुस्लिमों और हिंदुओं को अपने लिए नमूना ना बनाओ। तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना रसूलुल्लाह की ज़ात-ए गिरामी। अपनी सारी की सारी जिंदगी को रसूलुल्लाह की जिंदगी के मुताबिक बना लो। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, कामरानी है। रसूलुल्लाह की मोहब्बत जो है वो आपकी इताअत से मालूम होती है। जो मोहब्बत का दावा करता है, आपकी फरमाबरदारी नहीं करता, आपकी सुन्नतों पर अमल नहीं करता, आपकी जिंदगी को अडॉप्ट नहीं करता, आपके तरीकों को फॉलो नहीं करता, समझ लें कि वो खाली दावा है, फिर मोहब्बत के अंदर जान नहीं है। ये बुनियाद है तौहीद के बाद रसूलुल्लाह का तरीका इख्तियार करना और अपनाना। और आखिर में जो बात मैं करना चाहता हूं, आज हमने दुआ करनी है खुसूसी तौर पर। इस वक्त जो हमारे मुसलमान भाई गद्दा और फलस्तीन में पिस रहे हैं, आज मोहतरम भाइयों हम किस तरह खुशियां मना रहे हैं, किस तरह हम मौज के साथ
آزادی کے ساتھ آج ہم عید کی نماز ادا کر رہے ہیں، طرح طرح کے کھانے کھا رہے ہیں، طرح طرح کی گاڑیاں اور طرح طرح کے لباس، خوبصورت ملبوسات ہمارے پاس موجود ہیں، نوکر چاکر ہر چیز موجود ہے۔ آج ہمارے ان بھائیوں کا کیا حال ہے جن پر دن اور رات حملے ہوتے ہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں، 50,000 سے زیادہ جو ریکارڈ میں موجود ہے۔ آج تک فلسطینیوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ وہ بچے ہمیں نظر آتے ہیں اپنے باپ کی، اپنی ماں کی لاشوں کو اٹھاتے ہوئے، ان کی بوٹیوں کو کفنوں کے اندر رکھتے ہوئے، اور ان کے گھر ختم ہو گئے، مکانات ختم ہو گئے۔ اس کے باوجود فلسطین میں کل مسجد اقصی میں عید کا بہت بڑا اجتماع تھا، وہ دین سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ارض مقدس انبیاء کی سرزمین پر آج مسلمان کٹ رہے ہیں۔ ہم دین سے بیزار ہو کر، دین سے بیگانے ہو کر کس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہماری ہمدردی، ان کے لیے خصوصی دعا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر، اللہ ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔